Hello dear students, welcome back. I am Sharda Landi, your English teacher. First I want to ask you, everyone you all are fine? I hope so. So you see this is our English book. English Balbharti Standard 4. This is our English book. Students, I am your English teacher and today I will teach you for I will teach you English poem. You see these the contents. In this book you have 4 units and 37 lessons. Unit 1, Rain in the Night. This is our first poem. So you see the poem. Unit 1, Rain in the Night. This is our first poem. Okay. First I read it and you all are recite with me. Okay. Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like a kings and queens at the court, but the penises all get muddy because they are so short. The roses will wear a diamond like kings and queens at a court, but the penises all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in a wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the penises' faces. I will sail my boat tomorrow in a wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the penises' faces. Poem. So students, I read the poem and I know you recite with me. You see in the last of this poem, Emilia Josephine Burr, this name. You see this? She is the poet of this poem. Who is the poet of this poem? Emilia Josephine Burr. You see the pictures in this page, on this page. There is a little girl. She is carrying a watering pot. Here you see some plants and some flowers. These short plants are pansies and these big plants are roses flowers. You see this? So now I will explain you. Listen to me carefully and pay attention. Raining all night long. What is the meaning of these lines? Raining all night long means that barish. Rain means barish. I know everyone you all are know that rain means barish. So first of all you tell me, you like it barish? Everyone you like it barish or not? आप सबको रेनिंग पसंद है और या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है बारिश. So now I explain the meaning of these lines. Raining all night long. It means that rain means बारिश. बारिश जो थी ना स्टूडेंट्स, वो ना all night longs means जो बारिश थी वो पूरी रात भर हो रही थी. पूरी रात भर raining all night long. बारिश पूरी रात भर हो रही थी. Sometimes loud, sometimes soft, just like a song. अब आप सबको मालूम है म्यूज़िक कैसे होता है. आप अगर घर पे अपने म्यूज़िक सुनते हो या आपके आजू बाजू में कहीं पे कोई प्रोग्राम वगैरह हो, वहाँ पे अगर कुछ टेप रिकॉर्डर्स या डीजे वगैरह मंगाए गए हो तो वहाँ पे म्यूज़िक बजाया जाता है. तो कभी कभार उस पर लाउडली म्यूज़िक बजाया जाता है, कभी कभार सॉफ्टली म्यूज़िक बजाया जाता है. एंड व्हेन यू हियर द म्यूज़िक यू सेड दैट इट्स अ ब्यूटीफुल साउंड. अगर आपको वो म्यूज़िक पसंद आया तो आप क्या कहते हो? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको अच्छा ही बोलोगे. समटाइम्स लाउडली, व्हेन द म्यूज़िक गोज ऑन लाउडली यू आर वेरी इरिटेटेड. कभी जब म्यूज़िक लाउडली आता है तब आप बहुत ही ज़्यादा
इरिटेट हो जाते हो। हाँ, सो स्टूडेंट्स, जब भी म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा लाउडली बज जाता है और आपको अगर उस तो आप उससे इरिटेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप क्या कहते हो, वो म्यूज़िक बंद करो। तो उसी तरह से ये जो बारिश थी ना, समटाइम्स लाउड एंड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग, तो वो उस रात जो बारिश हो रही थी ना, वो बिल्कुल उस म्यूज़िक की तरह लग रही थी। कभी कभार लाउडली हो रही थी तो कभी कभार सॉफ्टली हो रही थी, जस्ट लाइक अ म्यूज़िक। ऐसा लग रहा था कि जैसे म्यूज़िक बज रहा हो। Now you see the next stanza of these poems. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. Dirty feet. Now there will be rivers. Rivers means nadi. Gutters. Gutters means like a pond. Pond. एंड लेक्स अलोंग अ स्ट्रीट। अब आप सभी को मालूम है कि हम रास्ते पर जब चलते हैं तो हमें रास्ते पर कई जगह पे कुछ छोटे मोटे गड्ढे नज़र आते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने यही बताया कि देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, मतलब रास्ते पे जो गड्ढे बने हुए हैं, वो गड्ढे ना बारिश की पानी की वजह से पूरी तरह से भर चुके हैं, फुल ऑफ वाटर। और उस वजह से क्या हुआ है, उस टाइम इट विल मेक अवर लेजी किटी वॉश इज लिटिल डर्टी फिट। और वो गड्ढे बारिश की वजह से फुल ऑफ वाटर, मतलब बारिश से पूरी तरह से भरने की वजह से वो हमारी जो किटी है ना, जो लेजी किटी, मतलब किटी, किटी मीन्स बिल्ली, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ है। तो वो है ना, वहाँ पे जो रास्ते के साइड में जो गटर्स थे, जो छोटी सी रिवर्स एंड लेक्स तैयार हुए थे, उस पर वहाँ पे जाके उसने उसके जो पैर गंदे हुए थे उसको उसने साफ करवा लिया। द रोजेज विल, नाउ द थर्ड स्टांजा। द रोजेज विल वेयर डायमंड्स लाइक अ किंग and queens at the court, but the penises all get muddy because they are so short. So students, in this third stanza you hear it, the roses will wear a diamond like a kings and queens at the court. यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि बारिश की पानी की वजह से क्या हुआ है, जो रोज़ फ्लावर है ना, उस पर बारिश का पानी गिर गया है, और उसकी वजह से जो रोज़ फ्लावर की जो पेटल्स है, उसकी जो पंखुड़ियाँ है, उस पर बारिश की कुछ बूंदें रह चुकी है। और सवेरे सवेरे जब हम जो फ्लावर देख रहे थे ना, तो उस टाइम वो फ्लावर कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फ्लावर ने डायमंड पहन लिया हो। डायमंड मीन्स हीरा, हीरे। ऐसा लग रहा था कि वो फ्लावर्स ने हीरे पहन लिए हैं। लाइक अ किंग्स एंड क्वींस एट अ कोर्ट, लाइक अ किंग्स एंड क्वींस एट अ कोर्ट मीन्स दैट जैसे राजा महाराजा के दरबारों में जो राजा और रानी होते हैं, उन्होंने जैसे ज्वेलरी या उनके जो भी कुछ कपड़े होते हैं, वो कैसे हीरे मोतियों से भरे हुए होते हैं, उस पर हीरे मोतियों की कोटिंग की हुई होती है, तो वो किस तरह से चमकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से वो रोज़ फ्लावर भी कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि मानो उन्होंने डायमंड, हीरे पहन लिए हो। बट द पेनिसिस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। बट जो पेनिसिस मीन्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम ही बताया, यहाँ पे जो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यू सी दिस फ्लावर्स, ये जो बड़े वाले फ्लावर्स है ये रोज़ फ्लावर्स है, और ये जो उसके नीचे जो दिख रहे हैं ना आपको स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, ये क्या है, पेनिसिस है। पेनिसिस मीन्स स्मॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। अगर आपको मालूम हो, आपने अगर देखा हो, मैंने देखा है मेरे घर के आजू बाजू में, रास्ते से जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल ऐसे प्लांट्स नज़र आते हैं, उसको हम सदाफुली का प्लांट्स बोलते हैं, सदाफुली का फ्लावर बोलते हैं। तो वो कैसे होते हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटे होते हैं, और वो छोटे होने की वजह से रास्ते पे जो कीचड़ फैला हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया, वो सब मडी हो गए। मडी हो गए मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो गंदे हो गए हैं, खराब हो गए हैं। सो आगे देखिए कि पोएट आपको क्या बताना चाहता है नेक्स्ट स्टांजे में। द फोर्थ स्टांजा, I will sell my boat tomorrow in a wonderful new place, but first I will take my watering pot and wash the penises faces. यहाँ पे ये जो छोटी सी लड़की आपको दिख रही है, दिस इज अ स्मॉल गर्ल, यू सी दिस गर्ल कैरिंग विथ हर वाटरिंग पॉट। तो यहाँ पे ये पोएट ने क्या बोला है कि वो जो लड़की है ना, वो क्या करना चाहती है, वो अपने साथ में उसको बोट तैरानी। अभी बोट मीन्स कागज़ की बनी हुई, यहाँ बोट मीन्स नाव, और यहाँ पे कागज़ की बनी हुई नाव का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अब आप सबको पसंद है या नहीं क्या मालूम, पर मैं जब आपकी जितनी थी ना, छोटी आपकी जितनी उम्र की, तो उस टाइम मैं भी जब बारिश होती थी तो कागज़ की नाव बनाया करती थी, और उसको
जहाँ पे भी ऐसे छोटे से पॉन्ड्स और गटर्स या फिर रिवर्स जैसे मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ बनी हुई होती थी, वहाँ पे मैं कागज़ की नाव बना के वो पानी में तैराती थी। तो ये लड़की यहाँ पे वही बोल रही है, आई सेल माई बोट टुमारो इन अ वंडरफुल न्यू प्लेस। वो क्या कहना चाहती है आपको कि वो जो उसने जो कागज़ की नाव बनाई है वो उसकी वो कागज़ की नाव टुमारो, टुमारो मीन्स वो अगले दिन एक नई जगह जाएगी, उसको एक नई जगह ढूंढेगी और वहाँ पर जाकर एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे उसकी उस नाव को वो तैराने वाली है। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पेनिस फेसेस। पर वो सबसे पहले अभी क्या करने वाली है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये प्लांट्स के लिए वो उसने अपने हाथ में वाटरिंग कैन ली है जिसमें पानी है, और वो ले जाके वो क्या कर रही है, अभी वो फ्लावर्स को वो साफ करने वाली है। इसलिए वो कह रही है कि मैं अपनी बोट को अगले दिन पानी में तैराऊंगी, पर अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स है, जो छोटे छोटे प्लांट्स है जो रास्ते पे फैले हुए कीचड़ की वजह से खराब हो चुके हैं, वो प्लांट्स को अभी मुझे साफ करना है। सो दिस इज योर poem's meaning. Now I tell you in short the meaning of this poem. First stanza you say that बारिश जो थी वो पूरी रात भर हो रही थी, कभी कभार जोरों जोरों से हो रही थी, कभी कभार धीमी धीमे से हो रही थी, जैसे कहीं पे म्यूजिक बज रहा हो। इन द सेकंड स्टांजा देयर विल बी अ रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, इट विल मेक अवर लेजी किटी वॉश इज लिटिल डर्टी फिट। सेकंड स्टांजा में आपको बोला गया है कि रास्ते पे जो छोटे मोटे गड्ढे बने हुए हैं वो पूरी तरह से बारिश की पानी की वजह से भर चुके हैं, जिसकी वजह से किटी ने उसके वहाँ पर जाकर किटी ने उसके जो गंदे पैर है वो उस पानी में साफ करवा लिए हैं। इन द थर्ड स्टांजा बारिश की पानी की वजह से जो रोज़ फ्लावर्स है ना वो कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो जो रोज़ फ्लावर्स है उन्होंने डायमंड पहन लिए हो, मतलब ऐसा लग रहा है हीरे पहन लिए हो, जैसे कि राजा रानी जो हीरे मोतियों से बनी हुई ज्वेलरी और जो कपड़े पहनते हैं, तो उसी तरह से आज वो रोज़ फ्लावर्स दिख रहे हैं। बट द पेनिसेस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। पर जो रास्ते के बाजू में जो छोटे छोटे स्मॉल से प्लांट्स होते हैं, रास्ते पे फैले हुए कीचड़ की वजह से वो सब मडी मडी मतलब वो खराब हो चुके हैं। एंड द लास्ट इन फोर्थ स्टांजा, ये जो छोटी सी गर्ल है ना वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि मैंने जो कागज़ की नाव बनाई है वो मैं अगले दिन पानी में एक नई सी जगह ढूंढूंगी, बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी जगह, और वहाँ पर जाकर मैं अपनी उस बोट को पानी में तैराऊंगी। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, वाटरिंग कैन लेकर वो जो छोटे से जो फ्लावर्स जो प्लांट्स है जो छोटे छोटे रास्ते पे उनको साफ करना है, क्योंकि वो बारिश के पानी गिरने की वजह से रास्ते पे फैले हुए कीचड़ की वजह से वो सभी खराब हो चुके हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस poem. I hope you all are understood it. Now you see these are the two example gutters means मैंने आपको पहले ही बोला रास्ते के आजू बाजू में जो छोटे मोटे गड्ढे बने हुए हैं ये बताया। तो देखिए चैनल्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट दैट कैरी ऑफ वाटर, मतलब रास्ते की बाजू में बने हुए जो छोटे मोटे गड्ढे कैरी ऑफ वाटर जो पूरी तरह से पानी से भर चुके हैं उसको हम गटर्स बोलेंगे। पेनिसेस स्मॉल प्लांट्स और देयर फ्लावर्स, द फ्लावर्स हैव अ पर्पल येलो और वाइट वेलवेटी पेटल्स। पेनिसेस मीन्स छोटे से स्मॉल से प्लांट्स जो रास्ते के बाजू में होते हैं, और वो फ्लावर्स का कलर कैसा होता है, पर्पल येलो और वाइट वेलवेटी पेटल्स। उसकी जो फ्लावर की जो पेटल्स होती है जो पंखुड़ियाँ होती है वो पर्पल कलर की होती है। So students, I hope you are all understood this the poem. So this is now your homework is you have to write these poems 3 times in your notebook. In our next lecture you have to write this poem, all these 4 stanzas write in your notebook 3 times, and we will meet in our next lecture and see the exercise of this poem. I hope you all are understood this poem. Okay, so you have to write this poem in your notebook 3 times. See this poem. Okay, I know you don't have any book, so
you have to write in your notebook. You see in this video poem. You see the poem in this video and write it in your notebook 3 times. Okay, thank you. Now we will meet in our next lecture.